Yes. Good morning, students. How are you all? I hope you are all fine. And you are studying the इनकम एंड अदर गोल्स, ये हमने क्लैरिफिकेशन कर दिया था। अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? नेशनल डेवलपमेंट। यस, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू नो अबाउट इट, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय डेवलपमेंट। दिस इज अ वेरी broad things that we should know that what is the national development. Actually नेशनल डेवलपमेंट में क्या आ जाएंगे? इंटायर नेशन। इंटायर नेशन दैट मीन्स एवरीवन शुड डेवलप। इफ वी कैन नॉट से द टोटल डेवलपमेंट देन देयर इज द प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टडी नेशनल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्रीज टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। यस, नेशनल डेवलपमेंट में क्या आते हैं स्टूडेंट कि पूरी कंट्रीज में क्या होते हैं इम्प्रूवमेंट होता है। किसमें? सोशल वेलफेयर में, जिसके कारण क्या होता है हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। क्या क्या उसमें डेवलपमेंट होते हैं? लेट्स स्टडी विद द पॉइंट। बाय प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज लाइक क्वालिटी एजुकेशन। यस, नेशनल डेवलपमेंट हम कब मानते हैं? जब उसमें क्या हो? क्वालिटी एजुकेशन हो। क्वालिटी एजुकेशन होगा तभी हम क्या मानेंगे? नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, पोर्टेबल ऑफ वाटर, वाटर की व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए सभी के लिए, तभी हम क्या मानेंगे? नेशनल डेवलपमेंट मानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी से होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो वेल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, माने राष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? वेल होना चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे? नेशनल डेवलपमेंट मानेंगे। एंड मेडिकल इटीसी, माने मेडिकल की व्यवस्था भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। यस स्टूडेंट, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेशनल डेवलपमेंट में? लेट्स स्टडी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ reconstruction and development in various dimensions of a nation and development of individuals. Yes student, जो national development होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? It is a process of reconstructions of the country, then we can say this is the development. Without the reconstructions and the processes we cannot say this is the development of the nations, of individuals. Here look at that, development of individuals. By individuals we can say this is the national development. If the individuals will not develop, then we cannot say this is the national development. So point number 1 is clear. Next point क्या है? In the national development it includes full growth and expansion of our industries. Yes, national development में क्या होता है स्टूडेंट? फुल ग्रोथ, नॉट हाफ ग्रोथ, फुल ग्रोथ ऑफ व्हाट? एक्सपेंशन ऑफ आवर इंडस्ट्रीज। हमारे कंट्री में फुल इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन होना चाहिए। यदि हमारे कंट्री में यदि फुल इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन नहीं हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये नेशनल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, बिकॉज इंडस्ट्रीज इट गिव्स मच मोर जॉब्स टू द पीपल्स, सो देयर शुड बी द industries development. Next, agriculture. Yes, agriculture it plays a very pivot role to development of the nations. If the agriculture is not well, then we cannot say that this is the national development. Okay, so there must be the agriculture very well. Next क्या है? Education. Yes, education क्या है student? Education is the pillar of the any particular country. If education is not well, so we cannot say that this is the national development, because education for the every children, when the education will provide to every children either lower class or upper classes, when all students will get the education, so definitely sure the country will boost, and when the country will boost,
So then so the national development will happen, no doubt. So there should be the education for the all children. Now social, religious and cultural institutions. Yes, there should be the social. समाज में क्या होना चाहिए? सोशलिज्म होना चाहिए, रिलीजियंस होना चाहिए एंड द कल्चरल इंस्टीट्यूशंस. Because of this we can say that the national development will happen. Okay. Yes, next point है हमारा स्टूडेंट्स, देखिए how to compare different countries or states that the national development. This is very interesting. We should know, we should understand very careful that how to compare different countries or states for the national development. Let's see. Number 1 point, in world development reports brought out by World Bank. You know World Bank? World Bank क्या है? विश्व बैंक क्या करता है? वर्ल्ड रिपोर्ट दिया है. क्या रिपोर्ट दिया है डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड के लिए? This is criticism is used in classifying countries. मैंने वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दिया है. रिपोर्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यह डेवलप कंट्री है और यह अंडर डेवलप कंट्री है. ओके, लेट्स स्टडी विद द पॉइंट्स. कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम माने हर एक व्यक्ति का जो पर कैपिटा इनकम है ऑफ यूएस डॉलर 12,736 पर annum, माने किसी भी कंट्री का एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,736 पर annum है एंड एबव इन 2013, माने 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम 12,736 पर annum है, आर कॉल्ड द रिच कंट्रीज. यानी उसे हम किस कंट्री में मानेंगे? रिच कंट्री में मानेंगे स्टूडेंट. एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1045 और लेस इज कॉल्ड द लो इनकम कंट्रीज. बात समझ में आ रहा है? माने जिस कंट्री का इनकम पर कैपिटा यूएस डॉलर 12,736 है, उसे हम क्या मानेंगे? रिच कंट्री मानेंगे. जिसका इनकम क्या है? यूएस डॉलर 1048 है, उसे हम क्या मानेंगे? लो इनकम कंट्री मानेंगे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे. यस, नेक्स्ट है क्या हमारा पॉइंट स्टूडेंट? देखिए, इंडिया इनकम इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम. इंडिया का जो इनकम है वो क्या है? किसमें आता है? लो मिडिल इनकम. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इंडिया इज द नॉट द डेवलप्ड कंट्री. वी कैन से दैट इंडिया इज द अंडर डेवलपिंग कंट्रीज. ओके, कंट्रीज बिकॉज इट पर कैपिटा इनकम इन 2013 वाज जस्ट यूएस डॉलर 1570 पर annum. इसके हिसाब से हम कह सकते हैं इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री बिकॉज डेवलप मीन्स व्हाट? entire development happens. Okay, let's study with the table. By this table we can clarify that the development countries. Okay, well, comparison of two countries monthly income of citizens in 2012 in rupees. मानिए जो आप टेबल देख रहे हैं ये क्या है? एक रिपोर्ट है 2012 का जिसमें मंथली इनकम दिखाया गया है. अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट ध्यान से, 5 सिटीजन हैं. सिटीजन नंबर 1, सिटीजन नंबर 2, सिटीजन नंबर 3, सिटीजन नंबर 4, सिटीजन नंबर 5. इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेवलपमेंट. लेट्स स्टडी. मान लीजिए कंट्री ए है, कंट्री बी है. अब यहाँ पर व्यक्ति का जो इनकम है मंथली, देखिए ध्यान से. मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पर मंथ कितना कमाता है? 9,500. ओके, एक व्यक्ति पर मंथ में इतना कमाता है. सेकेंड कितना कमाता है? 10,500, 9,800 एंड यहाँ क्या देख रहे हो?
10,000, यहाँ कितना है दिखाई दे रहा है ना, 10,000 to 100, ये क्या है पर व्यक्ति का है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कंट्री नंबर बी में देखिए क्या है, एक व्यक्ति 500, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति 500, तीसरा व्यक्ति 500 एंड फोर्थ नंबर व्यक्ति 500, बट फिफ्थ देख रहे हैं फोर्थ कितना है 48,000। अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इसका ग्रुप ए जो कंट्री आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें क्या है, बट इसमें देखिए क्या है, इसमें एक व्यक्ति क्या है इतना कमाता है। इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो मंथली इनकम है क्या है ये हाई है, इसे हम किसमें मानेंगे रिच कंट्री में, इसे किसमें मानेंगे रिच कंट्री में। बट यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया कि देखिएगा स्टूडेंट कंट्री नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें के जो इनकम है पर मंथ में 500, 500, 500, 500, लेकिन एक व्यक्ति की जो इनकम है कितना है 48,000, माने 48,000 ज्यादा इंजॉयबल है एंड ये व्यक्ति क्या है इंजॉयबल नहीं है, क्योंकि इनके पास इनकम ज्यादा नहीं है, इनके पास इनकम ज्यादा है, 4 व्यक्ति का सीट यही ले लिया है। बात समझ में आ रहा है, माने एक व्यक्ति पर 4 जन लोग बैठे हैं, 4 पीपल्स बैठे हैं एक ही सीट पर 1 2 3 4, बट एक सीट पर क्या है ये अकेला बैठा हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना, तो इसे हम डेवलप कंट्री नहीं मानेंगे। इसका देखिए देख रहे हैं इसका अमाउंट कितना है, इसे हम पुअर नहीं मानेंगे, नाइदर रिच नॉर पुअर, क्योंकि इसका जो पर व्यक्ति का इनकम है वो क्या है इक्वल, मतलब नॉट टू मच फार एंड लोअर, क्या है मतलब मिडिल में सबको दिखाई दे रहे हैं। माने यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो क्या है ग्रुप ए कंट्री का, वहां पर क्या है कि समानताएं हमें देखने को मिल रही हैं, भले ही उसका डेवलपमेंट कम है लेकिन हर एक व्यक्ति का इनकम क्या है ज्यादा, ना तो पुअर है ना तो ज्यादा रिच है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं दिस कंट्री ग्रुप ए इज द डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति का जो इनकम है स्टूडेंट वो क्या है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। नेक्स्ट टेबल हम देखेंगे तो और समझ में आएगा स्टेट वाइज, ये तो हमने कंट्री वाइज समझा, अब स्टेट वाइज लास्ट देखेंगे वो हमें क्लियर हो जाएगा। ओके यस स्टूडेंट, अभी हम रिसेंटली हम लोगों ने कंट्री वाइज ग्राफ टेबल पढ़ा एंड अब हम स्टेट वाइज ग्राफ पढ़ते हैं तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। इनकम परसेंटेज स्टेट वाइज सिलेक्ट, स्टेट वाइज देखिए क्या है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स, माने इनकम क्या है क्राइटेरिया यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे बोर्ड पर, और क्या है पर कैपिटा इनकम है सिलेक्ट स्टेट वाइज। देखिए क्या है यहाँ पर स्टेट है पर कैपिटा इनकम फॉर 2012 एंड 13 इन रुपीस। ओके यहाँ पर स्टूडेंट हमने 3 एग्जांपल्स लिए हुए हैं, 3 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। ये क्या है पर इन द ईयर, माने एक व्यक्ति एक साल में कितना कमाता है उसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट होता है। देखिए क्योंकि जब व्यक्ति की इंडिविजुअली इनकम होगा तभी तो नेशनल डेवलपमेंट होंगे ना। लेट स्टडी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का देखिए कितना है पर व्यक्ति कितना कमाता है, इतना रुपीस कमाते हैं, 1 लाख कितना है 4,000। एक व्यक्ति एक साल में 1 लाख 4,000 क्या करते हैं अर्न करते हैं। केरला क्या है 88,500, बिहार का है 27,200 पर ईयर में। अब आप देखिए कि जिस स्टेट का महाराष्ट्र का यहाँ का एक व्यक्ति एक साल में इतना कमाता है तो डेफिनेटली उसका जो इनकम गोल है, जो पर कैपिटा इनकम है, जो उसका अचीवमेंट डेवलपमेंट गोल है वो डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। जो केरला स्टेट है वहाँ 88,500 व्यक्ति कमाता है पर ईयर में, उसका भी अप्रोक्सीमेटली ठीक है
लेकिन आप देखिए बिहार में एक व्यक्ति 27,200 पर ईयर कमाता है, तो आप समझ सकते हैं उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। और उसमें आप देख लीजिए मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, हेल्थ देख लीजिए, एंड माने इंटायर डेवलपमेंट आप यदि देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो बिहार है उसका जो रेट है बहुत कम है, और इसी रेट कम होने के नाते हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट में स्टूडेंट क्या होते हैं, टोटल आपको पूरा डेवलप देखना पड़ता है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो आप लोग वीडियोस को देखिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेंशनिंग हियर। ओके, थैंक यू। आके बैठने ठीक नहीं है। Good morning students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So student, हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर दिया था, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, एंड नाउ इन द पार्ट 3 we shall study income and the other goals. This is a very interesting student, we should know about it, that what the peoples have income and what they have other goals. Let's study with the topic. Income is the most important component of development. Yes student, जैसा कि यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए, income is the most important component of development. कंपोनेंट मीन्स क्या होता है, अवेयर, सोर्स, माने किसी भी व्यक्ति को डेवलपमेंट के लिए इनकम का होना इट इज वेरी कंपोनेंट। इफ वी हैव ए इनकम देन वी कैन डेवलप, इफ वी डोंट हैव ए इनकम देन इट इज वेरी टफ टू बिकम अ डेवलपमेंट, सो वी नीड अ इनकम। ओके, नेक्स्ट, बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम one way or the other, people also seek things like equal treatment. मतलब समझ में आ रहा है, not only income तो we should need, but as well as we have another things apart from the income. What we think like equal treatment, माने development means entire development. अभी हम लोग आगे इसकी पढ़ाई करेंगे with examples. यहाँ देखिए कि इनकम माने इनकम तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इनकम तो हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट, माने सोसाइटी में क्या होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फ्रीडम होना चाहिए, मतलब हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, गॉट अ फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी। यस, माने स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। नॉट ओनली द हायर क्लासेस स्टूडेंट कैन स्टडी, बट ऑल्सो वी कैन स्टडी द लोअर काइंड ऑफ स्टूडेंट, दोज हु स्टडी इन द क्लास। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी। यस, एवरीवन नीड ए सिक्योरिटी स्टूडेंट, सो डेवलपमेंट तभी होंगे जब उसको सिक्योरिटी होगा, तभी हम मान सकते हैं क्या है, यह डेवलपमेंट इट इज इम्पोर्टेंट। रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स। यस, सोसाइटी में स्टूडेंट यदि हम डेवलपमेंट की बात करें तो सोसाइटी में क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ईच एंड एवरी पीपल्स, देन वी कैन से दिस इज द डेवलपमेंट गोल्स। जॉब, एवरीवन नीड अ जॉब, suppose that only upper class of peoples will get a job and lower class of people will not get a job, then we cannot say this is a development. It will get some problems, it will take some point on the development. Okay, so job will be everyone. Peace, शांति होनी चाहिए समाज में। ओके, ये क्या है, pollution free environment. Yes, our environment should be the very free, not too much polluted, because development means what, entire development, not semi development.
डेवलपमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, पूरा विश्व आ जाता है, पूरी सोसाइटी आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सोसाइटी में इंटायर डेवलपमेंट होना चाहिए, एक कंप्लीटनेस डेवलपमेंट होना चाहिए, देन वी कैन से दैट दिस इज द डेवलपमेंट। सो पॉल्यूशन शुड बी द फ्री, सो एक्सेट्रा आएंगे। तो इस तरह से हम इसमें कह सकते हैं कि इनकम के साथ साथ अदर भी गोल्स ह्यूमन के होते हैं, जो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल्स।